प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आपका कक्षा 10वीं के मैथ्स 1 के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के 7वें पीरियड में आपका स्वागत है। इस पीरियड में हम डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट से साइमेट्रिक सिस्टम को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सभी बातें की जानकारी लेंगे। तो डिटरमिनेंट, कंसीडर 4 numbers A, B, C and D. Consider 4 numbers A, B, C and D. Then the arrangement of numbers in rows and columns between two vertical lines as A, B, C, D is called और डिटरमिनेंट। ये जो अरेंजमेंट है 4 नंबर ए बी सी डी, इस तरह दो वर्टिकल लाइन के बीच में ये 2 रो और ये 2 कॉलम, इसे कहते हैं डिटरमिनेंट। और ये जो डिटरमिनेंट है ये क्या होता है, एक नंबर होता है। द डिटरमिनेंट इज अ नंबर गिवन बाय A, B, C, D equal to cross multiply AD minus BC. This is the number, this is the value of this determinant. The determinant is denoted by letter letters like capital A, capital B, capital C, etc. Like AB and CD are called rows, AC and BD are called columns. AB in bracket parenthesis AB, CD are rows and AC and BD are called columns of the determinant. Then degree of determinant. Degree of determinant. As we see, in this determinant, there are 2 elements in each row and 2 elements in each column. The number of elements in each row and column is called degree of determinant. The number of elements in each row and column of given determinant is called degree of determinant. Degree of determinant. For example, first suppose it 1, 2, 3, 4. Then in this determinant, in first row 2 numbers 1, 2, second row 2 numbers 3, 4. In first column 2 numbers 1, 3 and second column 2 numbers 2, 4.
Means in each row and each column there are two numbers or two elements. Therefore, degree of this determinant will be 2. The degree of determinant is 2. Or this determinant is also called determinant of 2 by 2. Determinant of 2 by 2. Second example, 1 minus 5, 7, 3, 8 minus 2, 4 minus 3, 7. In this determinant, suppose write name A, here B. Determinant B equal to 1 minus 5, 7, 3, 8 minus 2, 4 minus 3, 7. In each row of the determinant there are 3 numbers, 3 elements, and each column there are 3 numbers or 3 elements. Therefore, the degree of determinant this is 3. The degree of determinant equal to 3. And this determinant is called 3 by 3 determinant. Now, we will learn solution of simultaneous equation by determinant method. We will learn here shortcut. And what is the method? We see later. This method was first given by Swiss mathematician Gabriel Cramer. This method was first given by Swiss mathematician Gabriel Cramer. So, this method, also known as Cramer's rule. Cramer's rule. Okay. What is the method? Suppose a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2 with the pair of linear equations is simultaneous equation. Then the determinant of coefficient of x and coefficient of y. A1, A2, B1, B2, that is called determinant D. Then dx means in this determinant D, replace coefficient of A1, A2 by constant C1, C2. C1, C2, and this is B1, B2. Then dy. In this determinant D, replace coefficient of y by C1 and C2. Then dy will become A1, A2, and in place of B1, B2, write C1, C2. C1, C2. That means from these two equations, find d, dx, and dy. Then x will be x equal to dx upon d and y equal to dy upon d. To understand the solution of simultaneous equation by method of determinant, see here x equal to dx upon d. Dx is x equal to dx upon d. This is determinant, and y equal to dy upon d, that is equal to dx. Dx is c1, c2, b1, b2. c1, c2, b1, b2. And d is a1, a2, b1, b2.
A1, A2, B1, B2. dy is A1, A2, C1, C2. A1, A2, C1, C2. And this is A1, A2, B1, B2. If find the value of determinant, the value of the determinant dx is C1, B2, C1, B2 minus B1, C2 divided by A1, B2 minus B1, A2. And here value of y means value of the determinant dy divided by value of the determinant d. Value of the determinant dy A1, C2 minus C1, A2 and this A1, B2 divided by B1, A2. Remember this to understand method of solving family equation by determinant method. Determinant method or Cramer's rule to solve simultaneous equation. To solve simultaneous equation. तो अपन मेथड क्या है ये पढ़ेंगे अभी. जैसे अपन सॉल्यूशन इससे पहले देख लिए कि कैसे निकालते सॉल्यूशन, लेकिन एक्चुअल जो मेथड है वो कैसे आई है उसे अपने पढ़ना है. कंसीडर पेयर ऑफ two linear equations, that is simultaneous equation. A1x plus B1y equal to C1, A2x plus B2y equal to C2. Suppose equation number 1 and this equation number 2. We find this method by method of elimination to solve the simultaneous equation. To eliminate y, multiply equation 1 by B2 and equation 2 by B1 and then subtract equation 1 minus equation 2. Then equation 1 into B2 minus equation 2 into B1. This implies, देखो इक्वेशन 1 को B2 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 को B1 से मल्टीप्लाई करना है और ये इक्वेशन 6 से माइनस करना है, 1 से सेकंड को माइनस करना. तो यहाँ पे B2 से मल्टीप्लाई करेंगे A1 B2 प्लस B1 B2 सॉरी A1 B2x प्लस B1 B2y इक्वल टू B2 C2 और दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे B1 से मल्टीप्लाई करेंगे A2 B1x प्लस B1 B2y इक्वल टू B1 C2 सॉरी हियर C1. करना क्या है, माइनस. करना क्या है, माइनस. माइनस ये माइनस से माइनस साइन चेंज, तो इससे माइनस करेंगे A1 B2 x माइनस A2 B1 x इक्वल टू लिमिट हो जाएगा सेम नंबर है ये B1 B2y माइनस B1 B2y. यहाँ पे B2 C1 माइनस B1 C2. देयरफॉर यहाँ से x कॉमन ले लो, A1 B2 माइनस A2 B1 x इक्वल टू B2 C1 माइनस B1 C2 दोनों इक्वल. इसको इधर डिवाइड कर दो, x इक्वल टू आएगा
B2C1 माइनस B1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अब देखो B2C1 माइनस B1C2, B2C1 माइनस B1C2 है यही सही, और A1B2 माइनस B1A2 यह है A1B2 माइनस A2B1 सेम है। मतलब क्या हुआ, ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है, मीन्स क्या आ रहा है x इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कौन सी डिटरमिनेंट की, ये वाली C1 C2 अपॉन B1 B2, C1 C2 अपॉन B1 B2 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू किसकी है, ये डिटरमिनेंट डी की, A1 A2 B1 B2 मीन्स क्या आ रहा है यहाँ पे dx अपॉन डी अपन पढ़ चुके हैं। उसी तरह y निकालने के लिए ये इक्वेशन 1 को A2 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 2 को A1 से मल्टीप्लाई करो और फिर इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करो। नाउ इक्वेशन 1 इंटू A2 माइनस इक्वेशन 2 इंटू A1 इम्प्लाइज, अब देखो इक्वेशन 1 को A2 से मल्टीप्लाई करते हैं, A1 A2 x प्लस B1 A2 y इक्वल टू C1 A2, और दूसरा इक्वेशन ये, इसे A1 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, क्या आएगा A1 A2 x प्लस B2 A1 y इक्वल टू C2 A1, करेंगे क्या फिर माइनस, तो ये सेम है, एलिमेंट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा देखो ये साइन चेंज, तो ये प्लस से माइनस कैंसल, अब यहाँ से निकालो B1 A2 y माइनस B2 A1 y इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1, y कॉमन ले यहाँ से, B1 A2 माइनस B2 A1 इंटू y इक्वल टू C1 A2 C2 A1, इसको लिए डिवाइड कर दो, y इक्वल टू क्या आता है C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाय B1 A2 माइनस B2 A1। यदि आप इसे ऑब्जर्व करोगे जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, देखो C1 A2 C1 A2 माइनस, थोड़ा रीअरेंज करते अपन, माइनस, यदि माइनस कॉमन ली तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये पहले आगे माइनस C1 A2 हो जाएगा प्लस C2 A1, यहां से माइनस कॉमन ले लेते, ये हो जाएगा माइनस माइनस B1 A2 प्लस B2 A1, माइनस माइनस कैंसल, इसे अपन थोड़ा रीअरेंज करते हैं, माइनस माइनस कैंसल, इसे पहले के से बाद में C2 A1 माइनस C1 A2, और ये B2 A1 माइनस B1 A2, यदि आप इसे ऑब्जर्व करोगे C2 A1 माइनस C1 A2,
तो C2A1 माइनस C1A2 ये वाली मैट्रिक्स है, ये वाली डिटरमिनेंट है। और B2A1 माइनस B1A2 B2A1 माइनस B1A2 ये वाला डिटरमिनेंट है। क्या आ रहा है? y इक्वल टू dy अपॉन d, dy अपॉन d। Therefore solution equal to solution is g1 by x comma y equal to dx upon d comma dy upon d। और इस तरह ये मेथड है, इस मेथड की सहायता से अपन सैम्पलिफिकेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 14। In activity first, to solve the simultaneous equations by determinant method, fill in the blank. Y plus 2x minus 19 equal to 0, and second question is 2x minus 3y plus 3 equal to 0. Solution: write the given equation in the form x plus dy equal to c. जनरल फॉर्म लिखना है, पहले x फिर y और राइट साइड पे इक्वल के बाद में कांस्टेंट टर्म। तो ये 2x plus y equal to 19, then 2x minus 3y equal to minus 3 each. अब d means x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट इनका डिटरमिनेंट 2 2 1 minus 3, यहाँ पे 2 2 आएगा 1 minus 3। फिर इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 into minus 3 into minus 3, और फिर ये 2 into 1 और 1 into 2, 2 into 1, 2 into minus 3 minus 6 minus 2 into 1 2 minus 6 minus 2 minus 8, then dx. To find dx, replace this coefficient by 13 minus 3 here, 13 minus 3. Sorry. To find dx, in d replace 2 by 19 minus 3, 19 minus 3, and this as it is 1 minus 3. Then to find the value, cross multiply 19 into minus 3, it's minus 3 into 19, minus 3 into 1, minus 3 into 1, 19 into minus 3 minus 57, minus 57, then minus 3 into 1 then minus 3 into 1 minus 3, minus plus means plus 3, minus 57 plus 3 equal to minus 54, then dy. To find dy, in this determinant, replace this 1 minus 3 by 19 minus 3. Here 19 minus 3, and here it will be 2 2 19 minus 3. Then cross multiply to find the value. 2 into minus 3 minus 2 into 19, 2 into 19 or 19 minus into 2, 2 into minus 3 minus 6, and 2 into 19 38, minus 38, minus 6 minus 38 minus 44, minus 44. Then by Cramer's rule, x equal to dx upon d. Dx is here, dx is minus 54 and
D is -8, minus cancel, and it can easily get divided by 2, both numerator and denominator. It will become 27 by 4. Then y equal to dy upon d. Dy is -44, and d is -8. Minus will give an answer, and we can divide 44 and 8 by 4. This 11 by 2. This is the answer. Therefore, -44 by, x equal to, therefore x equal to 27 by 4 and y equal to 11 by 2 is the solution of the given equation. Okay. Then activity 2, page number 15 from your textbook. Activity 2, complete the following activity. Activity दी गई है. Here is the equation 3x minus 2y equal to 3, and another equation is 2x plus y equal to 16. Find the value of determinant in the given equation. Equation जो है उसमें अपना determinant value निकालना है. पहले d means यहाँ पे a1 a2 means 3 2 यहाँ b1 b2 -2 1 अब इसे सिंपली सॉल्व करेंगे. 3 into 1 3 minus 2 into -2 -4 3 minus -4 तो कैसे आएगा? रफर करते इधर 3 into 1 minus 2 into -2 2 into -2 कितना आएगा ये? 3 into 3 minus -4 equal to 7. क्या जाएगा यहाँ पे? 7. आप रफर जो करना है करो उधर, लेकिन यहाँ पे जितने ब्लॉक्स दिए, जितनी फिल ब्लैंक्स दिए है उतने ही फिलअप करो, या ज्यादा कवर करने का नहीं. dx, अब dx से निकालते हैं. जो x के कोएफिशिएंट उसको कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे. कौन सा कांस्टेंट? इक्वेशन 1 का 316 क्या आएगा? 316 और ये जैसे -2 1 इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन उसी तरह. 3 into 1 3 माइनस क्या आएगा? 16 into -2 -32 हो जाएगा. 3 plus 32 equal to 35. यहाँ लिखिएगा अपन 35. बस देख डिवाइड से निकालते हैं. ये डी में जो y का कोएफिशिएंट है उसे अपन कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं. 3 2 और ये y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे अपन 3 16 से. 3 और ये 16. अब इसकी वैल्यू निकालेंगे. 3 into 16 48 माइनस 2 into 3 6 हो जाएगा 42. यहाँ पे लिखेंगे अपन 42. नहीं वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल. x कितना आता है? dx अपॉन डी. अपन यहाँ पे जितना सिर्फ यहाँ पे 2 ब्लैंक स्पेस दी है इसके अपन लिखेंगे अपन dx कितना है? 35 अपॉन 7. 35 अपॉन 7 आएगा 5. y कितना आता है? dy अपॉन डी. यहाँ पे 2 ही कॉलम 2 ही ब्लैंक स्पेस दी है तो dy कितना है? 42 और ये है 7. 42 by 7 6. तो आंसर लिखिए x, y तो आएगा यहाँ पे 5, 6. 5, 6 is the solution. Okay, then let us think. There are 2 questions in your textbook, page number 16. What is the nature of solution if d equal to 0? That will determine d equal to 0. And second is, what can you say about the lines if common solution is not possible? ये इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जो अपन ग्राफ में पढ़ चुके हैं, जो मैंने पढ़ाया है,
कि जब दो लाइन मान लो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, इसे मान लो लाइन 1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इसे मान लो लाइन 2। जब ये दोनों लाइन एक ही होती है तब ये जो कोफिशिएंट है x के, y के और कांस्टेंट का रेशियो ये रहता है इक्वल, क्या रहता है इक्वल। दूसरी बात, जब लाइन पैरेलल होती है, मान लो ये दो लाइन पैरेलल है, कोई लाइन दोनों एक ही पैरेलल होती है, तब क्या होता है x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो को बराबर होता है, लेकिन वह रेशियो कांस्टेंट के रेशियो के बराबर नहीं होता। और जब ये कंडीशन रहती है x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो इक्वल है, तब वो लाइन एक ही होती है, दोनों लाइन एक दूसरे कोइंसाइड होती है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट। और दूसरी बात, जब वो लाइन पैरेलल होती है तब क्या होता है x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होता है, लेकिन वह रेशियो कांस्टेंट के रेशियो के बराबर नहीं होता। उस कंडीशन में ये दोनों लाइन होती पैरेलल, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन क्या होता है? जीरो, नो। जीरो मतलब नो सॉल्यूशन, जीरो नहीं, नो सॉल्यूशन। यहाँ कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या दिया है? व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इफ d इक्वल टू जीरो? d मीन्स डिटरमिनेंट d, कैसे निकालते अपन? a1 a2 और b1 b2, इसका डिटरमिनेंट निकाले अपन है, ये आता है a1 b2 माइनस b1 a2, और ये कितना दिया है? जीरो। कितना है? जीरो। मतलब a1 b2 के बराबर b1 a1, बी से अपन ऐसे ट्रांसफर किए, a1 b2 के बराबर b1 a2, a1 अपॉन a2 के बराबर b1 अपॉन b2। अगर इस नेचर को देखे अपन ने, ये बात को देखे, ये कंडीशन दोनों जगह है, तो क्या हो सकता है? यदि d जीरो है तो लाइंस एक ही लाइन हो सकती है, या तो पैरेलल लाइन हो सकती है, और एक ही लाइन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और पैरेलल नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? तो अपन लिखेंगे आंसर, इफ d इक्वल टू जीरो, दैट इज क्या आएगा? d इक्वल टू a1 b1, सॉरी a1 a2 b1 b2 इक्वल टू a1 b2 माइनस b1 a2, दैट इज इक्वल टू जीरो। इंप्लाइज क्या मिलता है यहाँ से? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 और b1। और यदि ऐसा क्या होता है? व्हाट इज द नेचर? नेचर क्या होगा? देन साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव infinite solutions or no solution। इनफाइनाइट कब हो गए? जब दोनों लाइन एक ही होगी तब। और नो सॉल्यूशन कब होगा? जब दोनों लाइन पैरेलल होगी तब। आगे कंडीशन दी नहीं है कैसे करके, वो डिपेंड करता है कांस्टेंट के रेशियो के ऊपर। यदि a1 infinite solutions if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। no solution if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 and not equal to c1 upon c2। नेचर समझ में आया? यदि d जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? c1 अपॉन c2 के रेशियो के ऊपर, कांस्टेंट के रेशियो के ऊपर। यदि कांस्टेंट का रेशियो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सभी सेम है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा कब? a1 अपॉन a2 यदि b1 अपॉन b2 के बराबर है और वह c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं। सेकंड क्वेश्चन है,
व्हाट कैन यू से अबाउट द लाइन्स इफ कॉमन सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल? कॉमन सोल्यूशन पॉसिबल नहीं मतलब क्या हुआ? यही कंडीशन है। कॉमन सोल्यूशन नहीं मतलब वो लाइन्स किसी होगी, एक तो पैरेलल होगी या तो वो सेम लाइन होगी। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे वन। आंसर इफ lines have no common solution, then they are same line or they are parallel line। पैरेलल लाइन, तो इस सेम लाइन होगी या तो पैरेलल होगी, तब उसका कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। ओके।